Good morning, students. Today we will start our chapter gravitational. Okay. Now the first term we have to study is the gravitational force of attraction. Okay. What is the gravitational force? Okay. We will see by just dropping a small stone from a height, it accelerates towards Earth. Okay. You can see gravitation everywhere around you. Okay. The stone is when accelerated towards Earth means some force is acting on it. Force which pulls the objects towards the center of the earth is known as the gravitational force of earth. ठीक है, हमारी अर्थ में क्या होता है, एक फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. ठीक है, इसका छोटा सा एग्जांपल है, एक स्मॉल स्टोन को अगर आप किसी भी हाइट से रिलीज़ करोगे या ऊपर फेंकोगे तो वापस नीचे की तरफ आएगा. ठीक है, नीचे की तरफ आते टाइम क्या होगा, वो एक्सेलरेट होगा. ठीक है, ऊपर जाते टाइम भी एक्सेलरेट होगा, उसकी स्पीड कम होगी धीरे धीरे, डी एक्सेलरेट बोलते हैं उसको. ठीक है, और नीचे आते टाइम क्या होगा, एक्सेलरेट होगा. एक्सेलरेट क्यों होगा, बिकॉज इट इज़ पुल्ड बाय द सम फोर्स दैट इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. वो फोर्स कौन सी है, जो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है, तो ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. ठीक है, दिस इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. हियर स्टोन ऑल्सो अट्रैक्ट्स अर्थ. स्टोन का भी कुछ ना कुछ छोटा सा मास है, वो भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है. इट मीन्स एवरी ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ओके, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स ईच अदर विद दिस फोर्स. ओके, so in 1687 Sir Isaac Newton, the scientist Newton, proposed a law about the force of attraction between the two objects in the universe, which is known as the Newton's law of gravitation. Okay, this is known as the Newton's law of gravitation. What this law says that the two masses, when we considered the two bodies or two masses, here we considered the capital M and small m, the force of gravitational, that is universal force of gravitation, is given by capital G mm upon d square. Okay, how this formula comes, this is comes from the statement of the universal law of gravitation, that every mass in the universe attracts every other mass with a force which is directly proportional to the, that force, gravitational force, is directly proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, so what is the universal law of gravitation? That is the force, every two objects attracts each other with a force, that is a gravitational force, which is which is proportional to the product of the two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, this is the universal law of gravitation. So here we assume capital M and small m are the two masses of the two objects or two bodies. Okay, they attract each other with a gravitational force, and that force is given by the capital G mm upon d square. Capital G is the universal gravitation constant. Its value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kilogram square. Okay, so हमने इसका डेरिवेशन देखना है. अब लेट मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम. ठीक है, इस तरीके से डेराइव करना है इसको. दो मास लेने हैं हमें, कैपिटल और एम स्मॉल एम, जैसा हमने डायग्राम में लिया है. दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों के डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल डी है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लग रहा है, कैपिटल एफ लग रहा है. कैपिटल एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर. प्रोपोर्शनल वाले स्टेटमेंट्स लिखने हैं हमें. ठीक है, यू कैन गिव द इक्वेशन 1, 2 and 3. So these are the three equations. If f directly proportional to mm upon d square, when combined the first and second, third equation will become force directly proportional to mm upon d square, and the fourth one is capital F is equal to gmm upon d square. जब proportional का साइन होता है तो एक कांस्टेंट आता है, where j is capital G is a constant and it is known as the gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. कैपिटल जी जो है वो क्या बोला जाता है इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. ओके, तो हमारा जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो इसी फोर्स को बताता है, दैट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, एक दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है जो उन दोनों के मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर डिस्टेंस के. ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर के. ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. ये अपने को क्या क्या चीज़ें हमें इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से,
किन किन चीज़ों की स्टडी करी गई, ठीक है। इससे स्टडी करा गया कि अर्थ को जो अर्थ जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच के रखता है, पुल करता है, उस फोर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। जो मून का मोशन है अराउंड द अर्थ, उस मोशन की स्टडी कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन इसी से मिलता है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड, या दूसरे प्लैनेट्स का जो मोशन है सन के अराउंड, ठीक है। जो टाइड्स उठती हैं सी में ड्यू टू द मून एंड द सन, ऑल्सो गिवन बाय दिस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ओके। यहाँ हमने बात करी थी कैपिटल जी, दैट इज़ द ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब हम आते हैं स्मॉल जी के बारे में बात। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है, किसी ऑब्जेक्ट का जब भी फ्री फॉल होगा, किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे या नीचे वापस आता है वो सर्टेन हाइट पे जाने के बाद, तो क्या होता है? वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स इट रीचेज सर्टेन हाइट, देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन टुवर्ड्स अर्थ। इट इज़ गिवन बाय द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ऐसा पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा। दिस फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, दैट इज़ ड्यू टू द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस फ्री फॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। डायरेक्शन तो डाउनवर्ड्स ही है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उसकी धीरे धीरे इंक्रीज हो स्पीड, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी, एंड दैट मीन्स इट इज़ एक्सेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी इज़ द रीज़न फॉर दिस एक्सेलरेशन, ओके। इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी। इस फ्री फॉल होते हुए ऑब्जेक्ट्स की जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसको बोलते हैं स्मॉल जी। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। स्मॉल जी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डेफिनेशन पूछी जाए तो इट इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट में जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हो रहा है इस कॉल्ड ड्यू टू बाय द, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब अर्थ पे इसकी वैल्यू क्या है? इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ को कंसिडर करेंगे, और किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो उसका स्मॉल एम ले लेंगे मास, ठीक है। और इसको कैलकुलेट करने पे जो स्मॉल एम इंटू जी की जो वैल्यू आएगी, दैट इज़ फोर्स। इसको हमने किसके इक्वेट करा? जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम फोर्स की डेफिनेशन देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम ए की जगह क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे, ठीक है, ठीक है। एम जी को इक्वल करेंगे हम जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर के, और यहाँ वैल्यूज पुट करने पे हमारी जो आंसर आएगी वो स्मॉल जी आ जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करने से हम जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दो फोर्स को इक्वेट करना होगा, एक तो फोर्स जो हमारा लग रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस फोर्स की वजह से लग रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों को हमें इक्वल करना है। रिलेशन बिटवीन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल अपोजिट फोर्स लगाता है। जैसे मून अगर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, उसी तरीके से मून भी अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी मास इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द एवरी अदर मास। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि हर एक मास यूनिवर्स में दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग स्टोन एंड अर्थ, स्टोन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द स्टोन। अगर कोई अर्थ की तरफ स्टोन आ रहा है तो स्टोन को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। उस अर्थ को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी इसका रिलेशन है, ठीक है। न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है उससे भी ग्रेविटेशन का पूरा रिलेशन है। दोनों एक दूसरे पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मास अलग अलग होने की वजह से वो फोर्स क्या है? अनबैलेंस हो जाता है। जो जिसका मास ज़्यादा होता है वो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा। बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द स्टोन शुड आल्सो डायरेक्ट टुवर्ड्स द अर्थ, अट्रैक्ट द अर्थ। इट इज़ ट्रू दैट द स्टोन आल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। F इज इक्वल टू एम ए ही फोर्स से ही स्टोन अट्रैक्ट करेगा,
बट ड्यू टू वेरी लेस मास, लेकिन इसका मास बहुत कम है यहाँ पे, नेग्लिजिबल मास है एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। तो वहाँ पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन होगा इसकी वेलोसिटी में वो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, अर्थ की तरफ जो जो स्टोन की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो 1.65 × 10⁻⁻24, जो कि नेग्लिजिबल होगा। अगर हम दोनों एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो जो स्टोन की तरफ अर्थ का एक्सेलरेशन है वो बहुत ही कम आएगा, -24, ठीक है। तो कितना कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ हमें खिंचती हुई नहीं दिखेगी स्टोन की तरफ, या नहीं खींच पाएगा वो, ठीक है, नेग्लिजिबल है उसका एक्सेलरेशन। ओके, तो आज हमने पढ़ा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, उसका मैग्नीट्यूड, स्मॉल जी के बारे में, कैपिटल जी के बारे में। यू हैव टू लर्न ऑल दिस नोट्स एंड राइट इन योर नोटबुक, ओके, विद डायग्राम, विद प्रॉपर हैंड राइटिंग, नीट एंड क्लीन वर्क। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।